Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 31 of this Statistics and Probability Theory course. Actually, in last class, we concluded the main topics जो कि हमने इस कोर्स के अंदर कवर करने थे, और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज कोरिलेशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स. उसमें आई जस्ट क्विकली रिफ्रेश कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने कंटिन्यूस वेरिएबल्स का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट था दैट वाज डिफाइंड बाय Cn एंड दिस वाज इक्वल टू 1 over Eg EF integral from minus infinity to plus infinity f of x g of x dx, where Eg was equal to g square of x dx from minus infinity to plus infinity, and EF was minus infinity से plus infinity तक f square x dx. So we evaluated different correlation coefficients for different cases. हमने देखा कि अगर shape जो है वो same है तो correlation coefficient जो है that remains 1. अगर shape में change आ रही है तो correlation coefficient, जैसे हमने decaying exponential के लिए देखा कि अगर decaying exponential जो है that is decaying slowly तो correlation coefficient जो है that is higher, and if it is decaying fast तो correlation coefficient जो है that is lower. But there existed some correlation क्योंकि वो जो curves थी दोनों they were in the same domain. Similarly, we also find the correlation between a sine wave and that square pulse or square wave. तो उसके बारे में उसका जब हमने correlation देखा तो that turned out to be 0. उसकी वजह obviously यही है कि वो one of the curves यानी sine wave was changing rapidly और दूसरी curve जो है that was not changing that rapidly. तो this is what was quickly about the last class. Today basically we will start revision. अगले दो lectures में we will summarize what we have done so far in this course. So basically this course started with data representation. Data representation में we had like raw data हम जो collect करते हैं that may be like this. Any data जो होगा वो हमें मिल सकता है. We collect a data और हमें जो data है वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है. तो data representation में हम क्या करते हैं कि we can actually sort this data, कि अगर हम sort करके लिखेंगे तो ये data होगा 1, 5, 7, 7, 8, 8 and 9. हम इस डाटा को ग्रुप की फॉर्म में लिख सकते हैं. वी कैन राइट दिस डाटा जो होगा दिस विल बी कॉल्ड रॉ डाटा. ये थोड़ा सा इसको हमने प्रोसेस कर दिया है. जो डाटा हमने कलेक्ट किया है दैट वुड बी कॉल्ड रॉ डाटा, और जो हमने प्रोसेस कर दिया दैट डाटा विल बी द प्रोसेस्ड डाटा. अब ये जो प्रोसेस डाटा है इसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि हम अगर ग्रुप्स बना दें. फॉर एग्जांपल वी कैन हैव अ ग्रुप फ्रॉम 0 to 3, फिर 3 to 6 और 6 to 9 और देन 9 to 12 इफ नीडेड. तो ये हमें वी नो वेरी वेल कि ये हम 3.5 पे एक्चुअली बाउंड्रीज जो हैं वो क्लोज करते हैं. तो हम इसलिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3 वी कैन हैव 4 और यहाँ पे वी कैन हैव 7. सो
or here we can have a 1 and here we can have a 10. तो अगर ये डाटा जो है हम इसमें लिखने की कोशिश करें तो वी कैन सी कि इस रेंज में देर आर 2 वैल्यूज 1 and 2. In the range between 4 and 6 there is only 1 value, and between 7 and 9 we have 5 values, and there is nothing in 10 to 12 range. So this sort of data जो होगा that will be a sort of grouped data. तो डाटा को हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रॉ फॉर्म, इन प्रोसेस्ड फॉर्म, किसी भी तरह से प्रोसेसिंग करके उसकी, यानी उसको हम सॉर्टेड डाटा लिख सकते हैं, एज ए सॉर्टेड डाटा लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज द ग्रुप्ड डाटा एज वेल. डाटा को लिखने की या डाटा को रिप्रेजेंट करने के जो ग्राफिकल टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी, उनमें वन ऑफ द टेक्निक्स वाज स्टेम एंड लीफ प्लॉट. स्टेम एंड लीफ प्लॉट में इफ वी हैव दिस डाटा लाइक 25, 23, 22, 26, 27, 30, 39, 33, 32, like we have this much data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 values हमने define कर दी. तो stem and leaf plot के लिए भी actually we need this data कि ये sorted form में हो. तो stem and leaf plot के लिए we can have 22, 23. Then we can have this is 9 which appears to be 19. Data हमारा यहाँ तक है. So this is 23, and then we will have 25, we will have 26, we will have 27, we can have 30, we can have 32, we can have 33 and 39. तो stem and leaf plot में actually we define a stem. For example, we can define stem with 2, और 2 को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 20 से 24 तक एंड देन 25 से 29 तक. तो 20 से 24 तक वी हैव 22 एंड 23, यानी उसका जो यूनिट्स वाला वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं. एंड देन अगेन वी कैन हैव 2, और 25 से 29 तक की जो वैल्यूज हैं 5, 6 एंड 7 वो हम लिख सकते हैं. इसी तरह से 30 से 34 तक वी कैन हैव अनदर वैल्यू जो कि हम 0, एक और स्टेम ले सकते हैं जिसके लीव्स जो होंगे दे विल बी 0, 2 एंड 3, और जो दूसरा स्टेम 3 से स्टार्ट होगा उसमें सिर्फ एक लीफ होगा 9. सो दिस वे वी कैन बेसिकली रिप्रेजेंट आवर डाटा बाय स्टेम एंड लीफ प्लॉट विदाउट एनी की, यानी लीफ यूनिट हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कि दैट इज इक्वल टू 1. So without any key, this stem and leaf plot may not be telling the whole story. But इसके साथ साथ हम इनकी जो नंबर्स हैं वो भी राइट मोस्ट कॉलम में लिखते जाते हैं. यानी here we have 2 values, we have now represented up till here 5 values in 2 these and 3 these values. और उसके बाद we have 8 values, and up till here we have represented all 9 values. So this column जो है that will be called cumulative
cumulative frequency. या क्यूमुलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी CAS। इसमें हम बेसिकली बता रहे होते हैं यहाँ तक कि ये हमने 2 नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं, ये 5 नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ तक हमारे पास 8 नंबर्स हैं एंड हियर वी हैव 9 नंबर्स। सो दिस वाज समथिंग जो कि हमने एक टेक्निक समझी थी। दूसरी टेक्निक वाज बार चार्ट्स एंड हिस्टोग्राम्स। बार चार्ट में नॉर्मली वी डोंट हैव समथिंग जो कि वी मे हैव सिमिलर थिंग्स और we may have different things at the bottom. For example, these bars may be representing population of countries. For example, this is the population of Japan. This may be the population of maybe Indonesia, and this may be population of United States of America. So these are the बार चार्ट्स। इनकी जो हाइट है दैट विल बी टेलिंग कि ये वैल्यू जो है ये इससे ज्यादा है, एंड विड्थ जो है दैट हैज नो सिग्निफिकेंस एट ऑल। जबकि दिस इज बार चार्ट, जबकि हिस्टोग्राम जो है दैट इज ऑन सम स्केल, और इसके अंदर वी हैव such continuous bars जो कि डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इनकी जो हाइट है दैट इज अगेन टेलिंग व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एसेंशियली इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है बार चार्ट को और हिस्टोग्राम को, लेकिन इनकी जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज डिफरेंट। और इसमें जो माइनर सा डिफरेंस है वो यही है कि इस एक्सिस पे वी मे नॉट हैव सिमिलर थिंग्स जो कि मैथमेटिकल स्केल्स में हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट सेंटर एंड स्प्रेड ऑफ द डेटा। एज अ सेंटर ऑफ लोकेशन, the location of data values can take the values we can take a median। यानी हम किसी भी डाटा की जो मिडल वैल्यू है अगर हम उसको ले लें तो दैट विल बी कॉल्ड मीडियन। यानी मीडियन से आपको याद होगा हमने उसको कैलकुलेट करने का या फाइंड आउट करने का तरीका जो देखा था, दैट वाज कि वी एक्चुअली सॉर्ट द डाटा फर्स्ट and then we count how many numbers are there. If there are odd numbers, for example it's n, तो जो n plus 1 divided by 2th number होगा या वैल्यू होगी that will be median। और अगर this is in case of odd, और अगर ये नंबर इवन हो जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, तो हम दो जो मिडल वैल्यूज हैं उनका अरिथमेटिक मीन ऑफ n by 2th एंड n by 2 plus 1th वैल्यू हम बेसिकली वी टेक द मिडल टू मिडल वैल्यूज, उनका अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, जैसा कि इस डाटा सेट में जो कि एग्जांपल हमने व्हाइल वी वर डूइंग दिस कॉन्सेप्ट, तो उस वक्त हमने ये देखी थी। इस डाटा का जो मीडियन है दैट टर्न्स आउट टू बी 8 विच इज मीडियन ऑफ दीज टू मिडल अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू वैल्यूज। देन इसका मतलब ये है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि मीडियन मे नॉट बी प्रेजेंट इन द डेटा। देन वी टॉक अबाउट स्प्रेड ऑफ द डेटा।
स्प्रेड जो है दैट इज मेजर्ड बाय द रेंज, यानी कितनी रेंज है डाटा की। फॉर एग्जांपल हम उसमें क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो व्हाट वी गेट इज द स्प्रेड, यानी इस केस में जैसे स्प्रेड को हम वेरिएबिलिटी भी कहते हैं, तो इस केस में स्प्रेड या वेरिएबिलिटी जो है दैट इज 21। देन वी आल्सो डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स जो थे दे एक्चुअली, जैसे मीडियन है जो वो डाटा को दो एग्जैक्ट हाफ्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल्स जो हैं दे डिवाइड द डाटा इनटू 4 इक्वल सेगमेंट्स या ग्रुप्स। तो इसमें देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, जिनमें लोअर क्वार्टाइल QL कहलाता है, इट्स मीडियन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द डाटा, मिडिल क्वार्टाइल इज द मीडियन ऑफ द डाटा एंड अपर क्वार्टाइल इज मीडियन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द डाटा। और एक और जिससे हम जो डेफिनेशन इससे अखज करते हैं दैट इज IQR या इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट कैन बी फाउंड बाई QU माइनस QL। IQR जो है वो QU माइनस QL से डिफाइन की जाती है। यूजिंग दीज क्वार्टाइल्स हम डाटा रिप्रेजेंटेशन की एक और टेक्निक हमने देखी थी जिसको हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट या सिंपली बॉक्स प्लॉट भी कहते हैं। उसमें हमने देखा था कि दिस डाटा जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, यानी दीज आर द विस्कर्स एंड दिस इज बॉक्स, और इसके दरमियान एक लाइन हम लगाते हैं। देयर मे बी अनदर डाटा सेट जो कि मे बी इस किस्म का हो सकता है। This value is basically minimum value and this is maximum value of the data. ये वैल्यू QL है और ये वैल्यू जो है ये QU है, यानी लोअर क्वार्टाइल पे बॉक्स स्टार्ट हो रहा है और अपर क्वार्टाइल पे खत्म हो रहा है, एंड वी आर टेलिंग कि इसका मीडियन जो है वो कहाँ पे है बाय ड्राइंग दिस लाइन। तो यानी इसमें जो IQR है दैट एक्चुअली दैट हैज द बॉक्स एंड रिमेनिंग पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन और एंड द विस्कर्स एट द एंड ऑफ दोस लाइन्स। तो इसमें दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा जो कि निस्बतन हमें बेहतर पिक्चर डाटा की बता रहा होता है। इससे पहले जो हमने डाटा देखा है दैट इज बेसिकली उसमें हिस्टोग्राम इज मच मोर, जो कि हमें ज़्यादा विजिबल ग्राफिकल इंफॉर्मेशन देता है, बट दिस इंफॉर्मेशन हमें कुछ उसके स्प्रेड के बारे में और उसकी वेरिएबिलिटी के बारे में, स्प्रेड या वेरिएबिलिटी के बारे में, और इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज के बारे में भी बताता है। इसी पे बेस करते हुए बेसिकली वी डिफाइंड आउटलायर्स, और an outlier is a value that appears to be uniquely different from the rest of the data set. This might indicate, might यानी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, यानी आउटलायर कैन बी एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द डाटा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दिस माइट इंडिकेट दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद डाटा कलेक्शन प्रोसेस, यानी हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है दैट इज नॉट डन इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। वन वे ऑफ फाइंडिंग आउटलायर्स इज यूजिंग IQR। इसमें आप कई तरीके बता सकते हैं कि आउटलायर हम किसको कहेंगे, बट एक जो स्टैंडर्ड मेथड डिफाइन किया गया है दैट इज IQR जो है that was defined as 1.5 times IQR. Okay, then we learned the process of finding median of the grouped data. उसका प्रोसीजर दैट वाज सिंपल, हमें बाजू का थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन इट्स समथिंग जो कि वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली।
सबसे पहले हम उसमें एक वो चार्ट या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी जैसे डाटा हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं या बॉक्स प्लॉट में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हम क्यूमुलेटिव डाटा को की फ्रीक्वेंसीज को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 50 एलिमेंट्स, तो हमने 5-5 के ग्रुप बनाए हैं, तो देयर विल बी 10 ग्रुप्स। उसके बाद हम 10 ग्रुप्स आर क्लासेस। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन विच क्लास द मीडियन कैन बी प्रेजेंट। अब वो क्लास हमें कैसे पता चलेगी? हमने n/2 यानी जो वैल्यू n/2 के साथ, यानी जिसमें n/2 पे हमारे 50 थी, जिसमें 25, जिस इंटरवल में 25 एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको कहेंगे कि दिस इज द क्लास इन विच मीडियन जो है वो लाई करता है। और उसके बाद हम उसके ऊपर ये रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं, विच इज मीडियन इज इक्वल टू LM प्लस n/2 माइनस f ओवर f sub m multiplied by I, where LM is the lower limit of the class that contains median, यानी जिसमें वो 25th वैल्यू होगी उसकी लोअर लिमिट। n जो है समेशन fi, यानी टोटल उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। Fm इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी जिस क्लास में मीडियन एग्जिस्ट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल उसमें 5 एलिमेंट हैं, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं। एंड कैपिटल M जो है, कैपिटल F जो है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको कैपिटल F से करेंगे, और I इज द क्लास विड्थ जो कि इन हर इंटरवल सेम होगी। तो वी यूज जस्ट प्लग इन दीज वैल्यूज और उसके बाद हम मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। द ओनली थिंग इज द सिलेक्शन ऑफ द क्लास इन विच मीडियन में लाई, और उसके बाद बाकी चीजें जो हैं दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। Then we also talked about mode. Mode is the value that appears the most in the data. For grouped data, it's the midpoint of the class containing largest number of elements, that is class with highest frequency. यानी grouped data के केस में mode जो है that is the value जो कि बार बार रिपीट हो रही है, और मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हो सकती हैं। तो इसलिए हम उस वैल्यू को देखते हैं जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है। और फॉर ग्रुप्ड डाटा एंड फॉर ग्रुप्ड डाटा इट्स द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, यानी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके मिड पॉइंट को हम चूज कर लेते हैं एज मोड। उसके बाद हमने मीन और वेटेड मीन की बात की थी। मीन जो है दैट इज वेरी सिंपल, कि अगर हमारे पास वी हैव x से लेके xn वैल्यूज, तो जो मीन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर n, यानी ये n वैल्यूज होंगी, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n xi। सिंपल। जो एवरेज या मीन हम कैलकुलेट करते आए हैं, दिस विल बी द सेम थिंग जो कि हम मीन से कैलकुलेट करेंगे। एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट विद मीन दैट वी डिस्कस्ड वाज कि वेटेड मीन क्या है। वेटेड मीन के अलावा हमने ग्रुप डाटा के लिए भी मीन की बात की थी। उसमें फॉर ग्रुप डाटा जो मीन होगा दैट विल बी, बिफोर वेटेड मीन हम ग्रुप डाटा की बात कर लेते हैं, कि वी विल हैव सम क्लास जो कि जिसकी के XL से XU तक अपर बाउंड्रीज होंगी, यानी XL1, और इस तरह वी विल हैव क्लासेस ऑफ द डाटा। ठीक है ना, यानी फिर उसके बाद XU1 से XU2 तक, या यहाँ पे हम L2 भी कह सकते हैं, और L2 जो होगी दैट विल बी इक्वल टू X1 या जो भी बाउंड्री है। Similarly we can have classes over here
and then we have frequency of these classes. For example, ये 1 हो सकती है, ये 5, ये 7, ये 2 और 3 और 2 and so on and so forth. तो हम इसको करने के लिए, इसके मीन फाइंड करने के लिए व्हाट वी हैव कि हम एक xi डिफाइन करते हैं, विच इज xi इन दिस केस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास, यानी xi जो होगा दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द क्लास. तो हम xi जो है उसको हम xi1 xi2 से रिप्रेजेंट कर देंगे. तो जो मीन होगा देन मीन विल देन बी इक्वल टू समेशन fi xi, यानी हम उसकी फ्रीक्वेंसी को उस मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दिस विल बी डिवाइडेड बाय n, वेयर n विल बी इक्वल टू समेशन fi. फॉर वेटेड मीन वी यूज द सेम कॉन्सेप्ट, बस उसमें वेटेड मीन में जो चीज है कि उस चीज का फ्रीक्वेंसी की बजाय उस चीज का वेट वहां पे आ जाता है, कि यानी उसमें वी हैव डिफरेंट वेट्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप कोई कोर्स जो है वो 3 क्रेडिट आवर का पढ़ रहे होते हैं, कोई 4 क्रेडिट आवर का पढ़ रहे होते हैं, बट और इसका मतलब है कि 3 क्रेडिट आवर का इम्पैक्ट जो है दैट शुड बी डिफरेंट इन योर मार्क्स एंड 4 क्रेडिट आवर का जो क्रेडिट है दैट शुड बी डिफरेंट. सो दैट्स बेसिकली द रीजन जिसकी वजह से आप लोग जीपीए भी हम आपकी कैलकुलेट करते हैं. वी डोंट डू इट्स लाइक एवरेज है या आपके परसेंटेज मार्क्स को वी डोंट गिव देम दैट मच वैल्यू. सो वेटेड मीन भी जो है वो भी इसी किस्म का होगा. उसमें fi की बजाय वी विल हैव द वेट्स wi xi डिवाइडेड बाय समेशन wi. यानी हमारे पास अगर ये डाटा है 1 2 2 और उसके बाद 3 3 3 डाटा है, तो इसमें फॉर एग्जांपल वी कैन राइट इट लाइक कि 1 का वेट 1 है, 2 का वेट 2 है एंड 3 हैज अ वेट ऑफ 3. तो इनका जो मीन होगा दैट विल बी आइदर वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप कि इन दोनों को प्रोडक्ट करके ऐड कर लें, यानी 1 + 4 + 9 डिवाइडेड बाई ये कितनी वैल्यूज हैं 6. तो दैट इज इक्वल टू 9 + 4 13 + 1 14 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 7/3 और 2 पॉइंट समथिंग इसका वेट होगा. तो ये हमने वेटेड मीन कैलकुलेट किया. अगर हम बेसिक तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 1 + 2 is 3 + 2 5, 5 + 3 is 8 + 3 11 + 3 is 14 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं दे आर 6. तो हम सेम वैल्यू हमें मिलती है जो कि वेटेड मीन से मिली. सो दैट वाज व्हाट वी लर्नड फ्रॉम मीन एंड वेटेड मीन. फिर एक हमने रिलेशनशिप देखी थी, दिस वाज एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप. एम्पिरिकल हम इसको इसलिए कहते हैं कि दिस इज इसका प्रूफ हमें नहीं मिलेगा. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप कि अगर हमारे पास मीन मीडियन में से कोई 2 क्वांटिटीज हैं तो हम तीसरी क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशनशिप. एंड देन वी डिस्कस्ड द वेरिएंस, spread and variability of the data values can be measured in more refined way by standard deviation and variance. Variance is defined as mean of the squared deviations from the mean. यानी ये वैल्यूज हैं और ये मीन है, यानी x बार जो है इन दिस केस दैट इज इक्वल टू समेशन xi डिवाइडेड बाई n, या n हम कैपिटल यूज कर रहे हैं तो दिस विल बी कैपिटल N. सो दिस अगर हम इस चीज का मीन कैलकुलेट करें, यानी हमने स्क्वायर लिया डेविएशंस का,
यानी ये हमारे पास वैल्यूज हैं और ये उसकी डेविएशन है, उसका स्क्वायर लें और उसकी हम एवरेज कैलकुलेट कर लें कि जितनी भी वैल्यूज थी, दैट विल गिव अस वेरिएंस। तो फॉर पॉपुलेशन यानी होल पॉपुलेशन मैंने आपको इन फ्यू लेक्चर्स अगो बताया था कि पॉपुलेशन हम कहते हैं कि पूरी की पूरी हम चीज को जब डिस्कस कर रहे हैं एंड सैंपल हम उसमें से कोई एक हिस्सा उसका उठा लेते हैं। तो फॉर सैंपल इट्स डिफाइंड बाई डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ n-1 का फर्क है। और इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम n जो है दैट इज ग्रेटर देन मे बी 30, तो n या n-1 से डिवाइड करने से कोई आपके ऊपर बहुत फ्रैक्शनल सा फर्क पड़ता है वैल्यूज के ऊपर। इसलिए जब पॉपुलेशन की हम बात करते हैं या n जो है दैट इज ग्रेटर देन 30, तो हम n-1 की बजाय n ही यूज कर लेते हैं। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है दैट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में देखना चाहें तो दिस विल बी x माइनस x बार डिवाइडेड बाई n एंड दिस इज होल स्क्वायर्ड और इसका स्क्वायर रूट। फॉर सैंपल और फॉर पॉपुलेशन वी कैन वेरी दिस n, और ये n है या n-1 है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि एक्सपेरिमेंट क्या है। Experiment is a process of measurement of observation in a lab, factory or on the street, in nature or wherever. यानी एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन ये थी कि हम जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं, कोई भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट को हम जनरल टर्म में यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, दे आर ओनली एक्सपेरिमेंट्स, दे आर मतलब हमने यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है, यहाँ पे जनरल से एक्सपेरिमेंट की बात की। एन एक्सपेरिमेंट टू बी रैंडम मस्ट यील्ड एटलीस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स। यानी अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट की रैंडमनेस की बात कर रहे होंगे तो उसकी कम से कम 2 आउटकम्स होनी चाहिए। जैसे कि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन है, उसके बाद उसकी 2 आउटकम हो सकती हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रोलिंग ऑफ ए डाई तो उसकी 6 आउटकम्स हो सकती हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स तो उसकी 52 आउटकम्स हो सकती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कि जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं उनकी आउटकम जो है दैट इफ इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल तो हम उसे रैंडम कहेंगे। अ ट्रायल इज सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट में हम मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो हम जो एक दफा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं एक रीडिंग लेने के लिए, दैट वुड बी कॉल्ड ट्रायल। देन रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड आउटकम और सैंपल पॉइंट। n trials give a sample of size n consisting of n samples. सिंपल सी बात है। सैंपल स्पेस S of an experiment is set of all possible outcomes, यानी जितनी भी उसकी पॉसिबल आउटकम्स हैं या सैंपल पॉइंट्स हैं, यानी टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं दे आर हेड और टेल, तो सैंपल स्पेस जो होगी वो हेड और टेल होगी। इन केस ऑफ रोलिंग ऑफ ए डाई जो सैंपल स्पेस होगी दैट विल बी एन आउटकम दैट इज 1 2 3 4 5 6। इन ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम द डेक जो पॉसिबल आउटकम्स हैं दे आर एनी नंबर्स फ्रॉम 2 to 9 या एस जैक क्वीन एंड किंग यानी फिगर्ड कार्ड्स। और इसके अलावा हर जो ये कार्ड्स हैं दे आर 4 डिफरेंट टाइप्स या कलर्स जिनको हम बोलते हैं उसमें होंगे। तो टोटल जो इसकी आउटकम्स हैं पॉसिबल दे आर 52। तो इसकी जो सैंपल स्पेस होगी दैट विल बी containing 52 elements. So this is a way we define the sample space. A subset S
are called events and outcomes of simple events. Outcomes are simple events. एस का हम अगर सैम्पल स्पेस का कोई सबसेट ले लें तो उसको हम इवेंट कह सकते हैं. जैसे कि मतलब हम कहें कि रोलिंग ऑफ ए डाई में वी ओनली गेट एन इवन नंबर, तो सैम्पल स्पेस हमारी छोटी हो जाएगी, 2, 4, 6 पे चली जाएगी. या हम कहें कि वी ओनली गेट अ रेड कार्ड, तो सैम्पल स्पेस 26 पे चली जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Then we talked about union, intersection and complements of events. Basically these come from जो set theory है. Union was A union B consists of all points in A or B or both. यानी जितने भी A and B के जो points होंगे या sample points होंगे या events होंगे, अगर हम दोनों सबको combine कर लें तो वो that will make union of A and B. और इसमें जो याद रखने वाली चीज़ थी कि अगर वो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है तो उनको हम एक मरतबा ही लिखेंगे, बिकॉज इफ वी राइट इट ट्वाइस तो इट विल वायलेट द डेफिनेशन ऑफ द सेट. एंड दीज यूनियंस, intersections, these are defined on sets only. The intersection A intersection B consists of all points that are in both A and B. यानी जो कॉमन पॉइंट्स अगर हम उनका सेट लिख लें तो दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इफ A and B have nothing in common, then A intersection B is phi, यानी phi is called empty set. If A intersection B is equal to phi, then events A and B are called mutually exclusive or disjoint. यानी अगर दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन है दैट इज एन एम्प्टी सेट, तो दो सेट्स जो होंगे दे विल बी कॉल्ड म्यूचुअली डिस्जॉइंट. अ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय ए कंप्लीमेंट और ए प्राइम कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एस दैट आर नॉट इन ए. Thus A intersection A prime जो होगा that will be equal to phi, and A union A intersection जो होगा that will constitute whole sample space S. उसके बाद हमने काउंटिंग की बात की थी कि सैंपल पॉइंट्स की जब हम बात कर लेते हैं तो हमें वी नीड टू काउंट के इसकी सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यूज होंगी विदाउट एक्चुअली राइटिंग दैट सैंपल स्पेस. इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उसको इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिटेल्स कि हम हर चीज़ जो है उसको लिखें या उसको लिख के काउंट करें, वी शुड बी एबल टू फाइंड के हमारे पास जो है वो कितने सैंपल पॉइंट्स हो सकते हैं. तो इसमें हम नॉर्मली व्हाट वी कॉल के हम एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं इस तरह की कि वी कैन हैव फॉर एग्जांपल टू आउटकम्स ऑफ ए कॉइन, यानी हम एक कॉइन टॉस करते हैं और वी से कि अगर हेड होगा तो हम कोई एक काम परफॉर्म करेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव टू बैग्स ए एंड बी और ए में वी हैव 5 रेड एंड 2 ग्रीन मार्बल्स इन ए, और बी बैग में वी हैव 3 रेड एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. अब अगर हम कहते हैं कि हेड अगर आएगा तो हम बैग ए चूज करेंगे, तो ए से वी कैन हैव अ रेड बॉल और a green ball, and similarly in B bag we can have a red ball or a green ball. तो हम ये एक ट्री डायग्राम बना के हमने देखा कि इसमें इवेंट्स जो हैं वो कितने हो रहे हैं. लाइक नाउ दिस, अगर हम इसका इवेंट्स का सेट लिखना चाहें तो हमारे पास दिस विल बी
head or red ball, head and green ball, then tail and red ball, and tail and green ball. This will be the sample space which will contain these 4 points. तो जो ट्री डायग्राम है that will actually eliminate a possibility of error कि हम कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे, यानी हम ग्राफिकली उस चीज को देख रहे होते हैं तो हम इसलिए उसको प्रॉपरली काउंट कर लेते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं पे ही डेक ऑफ कार्ड्स की बात करें तो डेक ऑफ कार्ड्स में तो 52 कार्ड्स हैं. अगर 52 ब्रांचेस हम पेपर पे बनाने की कोशिश करें तो आइदर दिस विल बी सो मच कंजेस्टेड कि वी विल नॉट बी एबल टू मेक आउट एनीथिंग, या ये हमें इतना बड़ा पेपर चाहिए होगा कि दैट विल द थिंग्स विल मेक इम्प्रैक्टिकल. सो वी ट्राई टू यूज डिफरेंट थ्योरम्स एंड जो रूल्स हैं ताकि हम काउंटिंग जो है वो कर सकें. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस देयर वर 2 आउटकम्स ऑफ द कॉइन, यानी हेड और टेल, और 2 आउटकम्स थी कि हम उसमें से बैग में से कौन से कलर्स हमें मिलेंगे. तो दैट इज व्हाट हम इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हमें इसको कहेंगे कि 2 इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, तो जो आउटकम्स होंगी दे विल बी 4 विच आर हियर और इन देयर. अगर इसी एग्जाम्पल में वी माइट हैव अनदर पॉसिबिलिटी कि ब्लू में वी हैड 3 ब्लू बॉल्स एज वेल, तो इसका मतलब है कि इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो जाती. तो अब हमारी पॉसिबिलिटीज जो थी दे वुड हैव बीन, यानी यहां पे वी कैन हैव अ ब्लू. तो अब हमारी पॉसिबिलिटीज जो हैं दे विल बी काउंटेड इन डिफरेंट वे, यानी यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं और यहां पे 3 हैं. सिंस दीज 2 इवेंट्स आर डिसजॉइंट तो हम इनको मल्टीप्लिकेशन रूल से नहीं कर सकेंगे. सो दिस प्रॉब्लम जो है इसको हमें काउंटिंग को वी हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, और हम इसको हमेशा बड़े ध्यान से करते हैं. काउंटिंग में हमने जो एक और कॉन्सेप्ट देखा था दैट वाज अबाउट द परम्यूटेशंस. परम्यूटेशंस जो हैं एन अ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स टेकन r एट ए टाइम इज, यानी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल we have 6 values like a, b, c, d, e and f. ये 6 values हैं और इनमें से हमने 3 लेनी है. Any 3 of these we can choose. तो इसमें basically we can have a, b, c, we can have b, a, c and c, a, b. अगर हम इनको यानी इनकी तरतीब जो है दैट डज मैटर, अगर हम इसको कहेंगे कि ये तरतीब मैटर करती है तो हम एक इस तरह से लिख सकते हैं, या हम कहेंगे कि ए बी सी हम इन तीनों में से कोई एक आ जाए, ये वन एंड सेम थिंग है. इन परम्यूटेशन के केस में हम इसको डिफरेंट इवेंट तस्वर करते हैं. ए बी सी इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए सी एंड सी ए बी. तो जो परम्यूटेशंस होंगी दे विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस NP-R रिलेशनशिप विच इज कैलकुलेटेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये जो होगा बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो दिस विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. तो दिस विल बी 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 factorial divided by 3 factorial. ये हमारे पास कैंसिल हो गया and this value turns out to be 120. यानी अगर हम repetitions अलाउ कर दें
तो हम 120 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट बना सकते हैं। और अगर हम रेपिटेशंस को एलिमिनेट कर दें, यानी अब हमने कहा है कि उसी केस में ए बी सी डी ई और एफ हमारे पास ये सेट है और इसमें हमने 3 चूज करने हैं और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यानी ऑर्डर जो है दैट डजंट मैटर। एबीसी विल बी टेकन एज, यानी एबीसी किसी भी फॉर्म में हो, दे विल बी काउंटेड एज 1। तो इस तरह के केस को हम कॉम्बिनेशंस कहते हैं। तो दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय NCR या n combinations of R, which is defined by n factorial divided by n minus R factorial into R factorial. So in this case we will have 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial. तो इसका मतलब ये होगा कि इस पार्ट को तो हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 120 इन दिस केस, और ये 3 फैक्टोरियल से फर्दर डिवाइड हो रहा है, यानी ये 6 से डिवाइड होगा तो इट विल बी 20। सो इफ ऑर्डर डज मैटर तो बहुत से केसेस जो हैं उसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। देन वी डिफाइंड probability. If there are n equally likely possibilities of which one must occur and s are regarded as favorable or success, then the probability of success is given by s divided by n. If an event can occur in h different possible ways, ये almost तकरीबन सेम डेफिनेशन है जो यहाँ पे हमने की हुई है, यानी इफ एन इवेंट कैन अकर इन एच डिफरेंट पॉसिबल वेज, ऑल ऑफ दीज आर इक्वली लाइकली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज एच डिवाइडेड बाई एन, और इसको हम क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं या क्लासिकल डेफिनेशन। जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है दैट इज if n repetitions of an experiment where n is large, an event is observed to occur in each of these, the probability of the event is h divided by n. This is called frequency approach or empirical probability. You can ask this question कि दोनों केसेस में हम h over n की ही बात कर रहे हैं, तो what is the difference in them? जो डिफरेंस है वो ये है कि इन दिस केस वी आर अस्यूमिंग कि सारे जो इवेंट्स हैं दे आर इक्वली लाइकली, बट इन दिस केस वी आर नॉट अस्यूमिंग दैट, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग दैट, एंड इफ फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ n ऑल इवेंट्स हैपन इक्वली, तो हम तब उसको इक्वली लाइकली कह सकेंगे, यानी हम ये दिस इज समथिंग जो कि हम करके देख रहे हैं और ये हम बिलीव कर रहे हैं कि दे विल बी फेयर। जैसे कि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में वी एक्सपेक्ट कि अगर हम बहुत लंबे अरसे के लिए उसको, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको टॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा मरतबा, तो हाफ ऑफ द टाइम्स there should be head and half of the times there should be tail. Similar is the case for rolling of a die. If these coin and die are fair, then axioms of probability. To each event A in the class C of events, we associate a real number probability of A. The P is called probability function and P of A is probability of event A if the following axioms are satisfied.
सबसे पहली जो एक्सियम प्रोबेबिलिटी की है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, जीरो हो सकती है, जीरो से छोटी नहीं हो सकती। फॉर सर्टेन इवेंट्स जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 1, यानी उसकी अगर हमें पता है कि हमने रैंडमनेस को जब डिफाइन किया था तब हमने कह दिया था कि एट लीस्ट देयर शुड बी 2 आउटकम्स, अगर एक ही आउटकम होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल बी 1 एक्चुअली। फॉर एनी नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 through AN in the class C, probability of A1 union A2 union AN is equal to probability of A1 union probability of A2 and so on up to probability of AN. And two events A and B are mutually exclusive or disjoint if A intersection B जो है that is infinity, ये हम डिफाइन कर चुके हैं इससे पहले, तो इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ज़रा हमने यहाँ पे दोबारा से बात की है। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल्स जो हैं प्रोबेबिलिटी के, ये हम बेसिकली इनको उसी तरह से हम देखते हैं जैसे कि हम जैसे हम डिजिटल लॉजिक में इनको एक्चुअली देख रहे होते हैं कि जब हम लफ्ज़ एंड यूज कर रहे होते हैं कि ए एंड बी, और ए एंड बी जो है दैट इज इन केस ऑफ इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन हो रहा होता है तो हम दो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब और की बात हो तो वी विल हैव टू यूज एडिटिव रूल्स। फॉर म्यूचुअली डिसजॉइंट केसेस एडिटिव रूल तो बड़ा सिंपल है कि हमने दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया, बट इफ यानी कुछ उनमें कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल की थी कि अ पर्सन इज इंटरव्यूड बाय 2 कंपनीज, तो वो कहता है कि जी मुझे ए से जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है और 0.6 है मुझे प्रोबेबिलिटी के कंपनी बी से मिल जाए। तो अगर हम इन दोनों चीजों को ऐड करें तो दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, विच मीन्स कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इसलिए कि इसमें हम दोनों को जो उसको एक चांसेस हैं कि दोनों कंपनीज से उसको जॉब मिल जाए, तो उसको हम इलिमिनेट नहीं कर रहे। सो दीज 2 इवेंट्स वर नॉट म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो एडिशन जो है जहां पे यूनियन है, दे विल बी वेयर यूनियन या और का लफ्ज होगा तो प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो ऐड होंगी, और अगर इंटरसेक्शन है या जिसे हम एंड बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटीज विल बी मल्टीप्लाइड। ये हम इसकी एक्सरसाइजेज काफी डिटेल में कर चुके हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस थ्योरम, या इसको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, दैट if the events B1 through Bk constitute partitions of a sample space S such that probability of Bi is equal to 0, is not equal to 0, then for basically this is I, which is mistyped, then for I is equal to 1 through K, then event A of S जो है probability, इसकी जो probability है that is probability of Bi intersection A summation of probability of Bi's probability of A given Bi। बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी टेक दिस कि हमारे पास S जो है वो
ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है। लेट्स से इसकी एक पार्टीशन B1 जो है वो ये है, द सेकेंड पार्टीशन इज लाइक दिस B2, थर्ड पार्टीशन में बी दिस B3, we might have this fourth partition which is B4, and we have these B5 and B6 as partitions. अब हम कहते हैं कि कोई एक इवेंट है A, दिस इज A, जो A की प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A will be equal to probability of B1 multiplied by probability of B, यानी probability of BI तो ये सारी है, this whole is probability of BI, और ये जो probability है probability of B1 given A has happened, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसी तरह से इस हिस्से को इंक्लूड करने के लिए B2, B3, B4, B5, B6 सब हिस्से इंक्लूड होंगे, तब जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ A हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो दिस समथिंग इज कॉल्ड लॉ या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसी के ऊपर हमने बेस रूल किया था कि अगर हम ये कहें कि इनमें से कोई जो हमने चूज किया है दैट इज फ्रॉम ए, यानी उस ए इवेंट का पार्ट है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट हैज कम फ्रॉम सर्टन सेट B1 या B2 या B3, यानी उसी तरह से हमारे पास ये पार्टीशंस हैं एंड वी हैव दिस A, हमने एक एलिमेंट चूज किया जो कि A से है, हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दिस केम फ्रॉम B2, यानी A से A में प्रोबेबिलिटी तो ये सारी है ना जो कि इस बड़े एलिप्स में लाई करती है, बट जो B2 से जो कंट्रीब्यूशन आया है A के अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो क्या है, तो वो हम इस रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस में जो कि हमने डिफाइन की लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर इंटरसेक्शन ए, यानी इस प्रोबेबिलिटी को इस टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करके हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू बेसिकली बेसिक लॉ, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. Then we discussed these random variables. A random variable is a function that associates a real number with each element in the sample space. यानी random variable जो होगा उसको हम कहते हैं कि it can be a variable x, y, z, और उसके अंदर उसकी कोई एक वैल्यू हो सकती है. वेरिएबल क्या होता है, मतलब x या y टाइप की वैल्यू होती है. यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि that can assume only random values. Example can be two balls are drawn in succession without replacement from an urn containing 4 red balls and 3 black balls, and its sample space we can write as but we have 4 red balls and 3 black balls. तो हमारे पास अगर sample space क्या होगी, we can draw both black balls, we can draw black and red, we can draw a red and black, or we can draw both red balls. क्योंकि this is without replacement तो हम इसको यूं देख सकते हैं. तो this अगर हम इसको हम कहें कि this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, x जो है that can assume any value between 0, 1, 2, 3. तो ये x जो होगा that will be called a random variable. This is how we define a random variable. So random variable जो है they can be discrete or continuous. ये हमारी जो सैम्पल स्पेस अभी हमने देखी थी this was discrete, इसमें वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती थी. We can have sample spaces जिनकी के वैल्यूज जो हैं they might be discrete like this or they can be
कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस रूम में भी, तो वो सारा एरिया जो है दैट इज कंटिन्यूस, और उसमें एक फ्रैक्शन व्हाट आई एम माइट बी रिप्लेसिंग, या जिसको मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट वुड बी द एरिया जो कि उसका उसके ऊपर उसका सबसेट हो सकता है। So if a sample space contains finite number of possibilities or an unending sequence with as many elements as there are whole numbers, it is called discrete sample space। यानी अगर उसमें finite होंगी या countably finite होंगी, यानी as many numbers as whole numbers, तो countably finite का मतलब ये था कि हमने जैसे कहा था, इस एग्जाम्पल को हमने बार बार दोहराया था कि हम किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं और हम कहते हैं कि 5 मिनट में यहां से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये 2 से 5 के दरमियान ही होंगी। इट इज काउंटेबल बट इट इज नॉट इनफाइनाइट। तो इस तरह की जो डिस्क्रीट सैंपल स्पेसिस होंगी दे विल बी डिस्क्रीट, जबकि कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस में देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। अगर रैंडम वेरिएबल जो है दैट बिलोंग्स टू डिस्क्रीट सैंपल स्पेस तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, और अगर कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस से हमने लिया है तो इट विल बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। देन वी टॉक्ड अबाउट दीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज जस्ट कि हमने फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स यानी एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है उसको डिफाइन कर दिया। तो एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करते हैं बाई एक्स एफ ऑफ एक्स ऑर्डर्ड पेयर से। इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इफ ईच पॉसिबल आउटकम एक्स हैज दीज प्रॉपर्टीज। एक तो एफ ऑफ एक्स जो होगी हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। हम सारे एफ ऑफ एक्स को ऐड करें, टोटल 1 होना चाहिए, और किसी भी पॉइंट पे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, स्मॉल एक्स पे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी दैट विल बी टेलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो हम उस फंक्शन को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो दैट इज बेसिकली कि हम उससे जो पिछली प्रॉपर्टीज हैं, पिछली जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको ऐड कर दें। यानी यहां पे दिस एक्स जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस और इक्वल टू कैपिटल एक्स, यानी रैंडम वेरिएबल जो है दैट इज लाइंग बिटवीन दैट पॉइंट एंड द लोअर एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल जो भी है। तो इसको हम बेसिकली समेशन ऑफ एफ ऑफ टी वेयर टी इज लेस देन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है एंड पे जाके जब हम सारी अगर वैल्यूज को ऐड करें तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट टर्मिनेट्स एट एंड में भी के ये इस तरह करते करते वी हैव अ स्टेयर विच रीचेज एट 1। इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होंगे दे विल बी रिप्रेजेंटेड एज फार्मूलाज, जबकि जो डिस्क्रीट होगी उसमें सिर्फ हमें नंबर्स नजर आ रहे होंगे, वो एक टेबल की फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। जबकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो होंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज़्ड टू पावर एक्स टाइप के जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, और दीज विल बी द कंटिन्यूअस probability density functions, और simply हम उनको density functions कहते हैं। Then we can again define a cumulative distribution function for continuous variables as well। उसमें we will basically जैसे हम उससे पहले तक की वैल्यूज तो -infinity से x तक अगर हम इंटीग्रेट करें तो we get these cumulative values। जो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं दे विल आल्सो हैव द सेम प्रॉपर्टीज के वो नॉन नेगेटिव होंगी, और उनका जो सम है ओवर होल इंटरवल एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1,
और हम जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटीज हैं वो किसी एक पॉइंट की नहीं बल्कि एक इंटरवल की डिफाइन कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स जो होगी दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स की अगर प्रोबेबिलिटी हो, द फंक्शन f of x y is joint probability distribution, a probability mass function of discrete random variables x and y if वही कंडीशंस हैं, बस अब वेरिएबल दो हैं। f of x y जो है दैट इज नॉन नेगेटिव, समेशन ऑफ x y जो होगा समेशन ओवर x एंड y दैट इज 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू y इज f of x y। इसी तरह से हम किसी रीजन में x y जो बिलोंगिंग टू a है दैट इज आल्सो that is also found by this summation, यानी x y जो होंगे they will be from this region only. Then we have these marginal distributions. Marginal distributions of x alone and y alone are defined as g of x जो है that is summation of f of x y sum taken over y, और h of x जो होगा that is here we will have h of y actually. h of y जो है that will be equal to sum taken over x in discrete case, while in continuous case g of x जो है that is equal to integral over whole interval of this function taken with respect to y, and h of y जो होगा that will be equal to integral taken from minus infinity to plus infinity f of x y dx. So this basically was all about कि हमने first 15 lectures में what we covered, although के एक घंटे सवा घंटे के लेक्चर में इसका पूरा अहाता नहीं किया जा सकता, but we have quickly refreshed the main ideas जो कि हमने first half of the course में पढ़े थे. So I'll say goodbye from this class right now, or we'll see you in the last class next time inshallah. Allah Hafiz.